Hi, Dr. Parmendra Mishra. Good morning and thanks a lot for your time. Thank you very much, sir. It's my pleasure to have you online. Okay. So, Dr. Parmendra, let me congratulate you for your selection as lecturer in Bihar Polytechnic, which was conducted by Bihar Public Service Commission, this entire process. So, congratulations for that. Thank you very much, sir. Okay. So, Dr. Parmendra Mishra, let me tell you, very less people like you from background of English. You are from English background as of now are on the platform of Europedia, and I want more and more such scholars and mentors from subjects like English and other humanities subjects to be on my channel. So I got opportunity to interact with you today, and I have many things to discuss with you. But first, I start with your background. So I'm interested to know, Dr. Parmendra Mishra, what is your background, academic background? Which part of Bihar you are from, and how was your academic journey? And presently, looks like you are already faculty somewhere. So please tell us about those things first. The journey of my education started in a vernacular school in my village, Dhoi, which is barely 6 kilometers east of Darbhanga Junction. After I completed class 7, I went to Madhya Vidyalaya Mathurapur Kabirchak, which is in the suburban area, and then completed class 10 from Sarvodaya High School, Gangasagar, Darbhanga. Upon completion of my 12th, I went to the University of Delhi, got admission in English honors at Zakir Hussain Delhi College. After completing graduation, I came back to my hometown in Darbhanga, and there I got admission in MA in English. I was one of the rank holders during my MA. The day I got my MA mark sheet, just after a week, I got an opportunity to work at Hansraj College of the University of Delhi as a guest faculty. And there I worked for 4 years. Okay. Luckily, I got a chance to got a Fulbright scholarship, and I went to study and teach at New York University, New York for one academic session. And Wonderful. there I met wonderful people, and my supervisor, Professor Gabriela Eliva, she has been a pivotal around which I kept enriching myself. When I came back to India in 2014, I rejoined Hansraj College before I got yet another opportunity from the Ministry of Education, Kingdom of Saudi Arabia. And there I worked for 3 years teaching in a technical college. I came back to my hometown, luckily before the pandemic broke out. And I have been here in Darbhanga since then, working in one of the state university affiliated colleges, Marwari College of Ellen Mithla University in Darbhanga. Okay. This has been my journey. Wonderful. So, Professor Mishra, let me ask you, like you had exposure of different universities globally. You went to New York. You said that you got a very good scholarship, Fulbright scholarship, and that is very prestigious one. And then you went to another country and you served there. My question to you is, why you decided to come back? Because the moment you start getting opportunities abroad, you try to explore it more, and you do not want to come back normally. So what motivated you to come back to Darbhanga after exploring these options? Yeah, that's a very valid question, and many people ask me this. This move had already been decided when I was in class 9 or 10. I chose to learn from different places, but work and serve my state, my district, my people, Maithili speaking community in Bihar. So I decided to come back because this is where I have got everything in terms of knowledge, understanding, my culture, everything from there. So I guess my interaction with students in the classroom, it will help them improve their English. And I feel that my knowledge of different universities and my teachers, those who have taught me, when these all things infused together in a classroom, I can bring a better learners from my classroom. So I chose to come back to serve my community. That's true. Professor Mishra, you will be going to Polytechnic College and you will be teaching the budding technocrats there. I tell you one thing, engineering community, if I talk about engineering students, they may be good in technical field, but one thing which lacks in the majority of the students, which I realize as a teacher,
इज कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स पे वो बहुत एक ट्रबल है, मतलब स्टूडेंट्स का उतना अच्छा नहीं होता, especially when it comes to English speaking. Now, as you are already aware that the kind of curriculum which we go through is in English only, and that justifies that we need to have English as a subject. We need to communicate in English. We need to teach also sometime in English because that is a curriculum. So, students from northern states find difficulty in doing that. And I always believe that role of teachers, mentors like you is very, very crucial, especially in engineering educational institutes. How do you see this entire thing? Especially you are in Bihar. और ये आपको भी पता है कि बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, हरियाणा, पंजाब के अंदर इंग्लिश कम्युनिकेशन एक चैलेंज है। और वो Hmm. स्टूडेंट्स को पूरी तरह से उनकी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने से रोकता है। because majority of the options engineering students get are related to foreign education, foreign options, MNCs and all. तो उसके लिए इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। How do you see, Dr. Mishra, this entire scenario which I just discussed with you right now? It's a very crucial point that you have raised. It's true that English, especially communication part, it functions like wings for the students of science background. They can perform well with their knowledge, but they can fly high with the knowledge of English if they have. They can reach and interact with maximum number of people, and there would be better job opportunities in comparison to those who have not been proficient in spoken part or in written part or in expression. Personally, I believe that in my hometown and elsewhere in Bihar, students know English, they have good vocabulary, but because of lack of opportunity for interaction or lack of motivation, or sometimes they don't get that kind of push up to present themselves in English. Therefore, they always hesitate in presenting themselves. As a learner and as a trainer, as a teacher, I guess my job would be to motivate them so that they can understand things in a better way and can present their understanding even in a better way. Wonderful. And if this happens, sir, then I believe the community, especially underprivileged or less economically weaker section people, sometimes it has been seen that usually students coming from affluent families or going to high paid schools, they are able to imbibe the linguistic classifications and other important characteristics of language. But those who do not get this opportunity to interact with English environment, they have bigger difficulties. They have great difficulties in surviving 100% English speaking community. And I personally believe that if engineers, and irrespective of their branches, if they are able to understand and express themselves better in the language, it would function like wings to them for opportunities also, for recognition also, for honor also, so on and so forth. Wonderful. Dr. Mishra, I will ask you a question which normally students ask me. As you know, your PDI is mentoring students for various interviews and all. And students come to us when they have only couple of days left for their final interview. Let's say 1 week, 2 weeks and all. And students want to interact in English. There are reasons for that because there are some organizations which are southern based. Like I give you example, Bhava Atomic Research Center, Indian Space Research Organization, Defense Research Development Organization. They are some of the reputed institutes where the panelist may not be very comfortable in Hindi and they want questions, in a student to answer in English also. So English becomes one communication language in the interviews. Now think of a student from Bihar or Uttar Pradesh or Punjab or Northern Rajasthan and all. Now he is not confident in English. He has cleared the exam and that takes a lot of effort for him. Maybe it has taken him all the years to come to this level of interview. Now interview is 1 week, 10 days away. Now the student comes to me. He says, सर मेरे को इंग्लिश नहीं आता है, मेरे को इंग्लिश में इंटरव्यू देना है, मेरे को इंग्लिश जरा नहीं आता है, अब मैं क्या करूं? Now I got the opportunity to talk to you today, Dr. Mishra. I'll throw this question towards you.
क्या कर सकता है स्टूडेंट, एंड मे बी इफ यू कैन प्रोवाइड अस कि अगर किसी के पास एक ही वीक है तब वो क्या कर ले, अगर वो उसके पास एक मंथ की अभी से तैयारी करे, बिकॉज दो स्टूडेंट्स हु आर एक्सपेक्टिंग इंटरव्यूज एटलीस्ट दे कैन मूव विद सम स्ट्रेटजी कि भाई मेरे को इंग्लिश में सीखना तो है ही, करना तो पड़ेगा। और इंग्लिश का बिलीव मी देयर इज अ बिग इम्पैक्ट बिकॉज देयर आर ग्रुप डिस्कशंस आल्सो, फॉरगेट अबाउट इंटरव्यू, देयर इज अ ग्रुप डिस्कशंस आल्सो नाउअडेज इन सिलेक्शन प्रोसेस। तो जब तैयारी करना ही है तो एक स्ट्रेटजी के साथ आगे चले। तो डॉक्टर मिश्रा वो क्या स्ट्रेटेजी हो सकता है, मतलब एक तो बड़ी शॉर्ट टर्म लाइक से 1 वीक किसी के पास रह गया अभी, और या फिर 1 मंथ 2 मंथ, तो क्या आप उनको एज अ टीचर क्या स्ट्रेटेजी आप दे सकते हैं कि वो कैसे अपने आप को एक्वायर करे ये इंग्लिश स्पीकिंग स्किल? सर मेरे पास जो ऑनेस्टली जो फर्स्ट स्ट्रेटजी मैं उसे बताऊंगा, वो या आपकी वीडियो यूट्यूब योर पीडिया पर देखते हैं, राइट, स्पेशली ओके। द वन विथ ग्रुप डिस्कशन। उसमें कैसे एंटर करते हैं कि या कॉन्स्टेंटली तो कोई बोलता नहीं रहता है, बीच में जैसे या पॉज होता है, सो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। तो फर्स्ट स्ट्रेटजी वुड बी टू कीप surfing internet and find out valuable resources, and one of the most authentic and valuable resources that I have found is your videos available on your video on YouTube. Second, they can, in place of improving their English in a very short span of 1 week or 1 month, I would strongly recommend them to uh, be concentrated towards what they know, and focus on confidence while presentation. While presenting in front of the board, it is better to have confidence than thinking about constructing new sentences and words and phrases. So this is a second. The third that I might suggest them is to have a rough idea about what is inevitable to speak, that cannot be avoided. For example, interview, educational background, family background, some weaker sections that I have in my mind, some stronger parts, some strength of mine. So these are some common things that they can prepare. Otherwise, there is no shortcut that can make shortcut them is going to. master. That can make them master in 1 week. Dr. Mishra, there are certain skills which can only be acquired by practicing. We Right. give example of cycling or swimming. Speaking is something related to that only. That can also be acquired while speaking only. So एक स्टूडेंट जो इंग्लिश स्पीकिंग को सीखना चाहता है उसको बात कैसे करना चाहिए, अगर सपोज ही इज नॉट हैविंग फ्रेंड सर्कल और दे आर नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज वी फाइंड द प्रॉब्लम समटाइम लाइक अगर कोई बच्चा सीखना चाहे तो उसके जो पीयर ग्रुप है उसका मॉक करते हैं उसका, दे मेक मॉकरी ऑफ दिस, सो ही अवॉइड्स दैट इंटरेक्शन। एंड नाउ इज देयर एनी स्ट्रेटजी लाइक अकेले में वो कैसे इंग्लिश बोलना सीख सकता है, दैट मीन्स शुड ही स्टार्ट स्पीकिंग ऑन हिज ओन, और कैसे वो करे कि बंद कमरे के अंदर वो इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे कर सकता है? हमारे पूर्वजों में सर कहा गया था, 100 श्रवण पाठ करनी चाहिए। पढ़ाई इतनी तो जोर से करो कि अपनी आवाज अपने कान तक आ पाए। और बोलने बोलने का बेहतर सबसे तरीका ये हो सकता है, अकेले में मिरर के सामने इतने जोर से बोलें कि अपनी आवाज खुद सुनाई दे। उसको रिकॉर्ड करके देख सकते हैं कि मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ क्या वो स्टैंडर्ड इंडियन एक्सेंट है, और इट इज फिल्ड विथ हैवी अमाउंट ऑफ मदर टंग इन्फ्लुएंस। उसके बाद जो ऑर्डिनरी वर्ड्स हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं, छोटे भाई बहन के इंग्लिश की किताब में जो वर्ड है, न्यूज़पेपर के पहले पन्ने पर जो है, या फिर मुझे क्रिकेट से लगाव है तो क्रिकेट के पेज में जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं, उन वर्ड्स को जानना, उसका इस्तेमाल करना, बार बार उसका उपयोग करना, यही एकमात्र तरीका है जो आने वाले फ्लुएंसी को, जो जो मैं बोल रहा हूँ, आने वाले सेंटेंस जो मुझसे बोला जाएगा, उसको मेंटेन रखेगा, पेस वन आफ्टर अनदर आफ्टर अनदर। क्योंकि जैसे ही प्रैक्टिस करते हैं तो हम फ्लुएंट हो जाते हैं बातचीत में, एंड द लेस प्रैक्टिस मेक्स अस मोर हेजिटेंट। अभी जिस तरह से मैं सर आपसे बात कर रहा हूँ, द काइंड ऑफ इंग्लिश दैट आई एम यूजिंग टुडे, इट वाज नॉट द सेम व्हेन आई लैंडेड इन इंडिया, हैविंग स्पेंट 1 year इन द यूएस। अभी अंतर है। दैट इज ट्रू। तो ये कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको ध्यान में रख के हम कर सकते हैं। और सीखने का सबसे बड़ा मंत्र जो हमारे सर ने दिया था, प्रोफेसर परमानंद झा सर, पीएन झा सर, मैं जो कुछ भी इंग्लिश जानता हूँ, 3-4 इंपॉर्टेंट टीचर हैं। एक पीएन झा सर हैं, एक प्रोफेसर अशोक कुमार बच्चन सर हैं, दिल्ली में है डॉक्टर हरिप्रसाद, और न्यूयॉर्क में है प्रोफेसर गेब्रियला निक एलिवा, और श्री अनूप भार्गव जी। तो
इन लोगों ने यही कहा है कि जिसको सीखना हो उसके लिए जज्बा रहना चाहिए, उसके लिए जो बर्निंग डिजायर हो, वो बर्निंग डिजायर कम नहीं पड़ना चाहिए। हम्म। और कभी कभी तो मैं अपने छात्रों को कहता हूं कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। हम्म। सही होता बस ये ठानना है। हो। That dedication is required and passion is required, which you mentioned, Dr. Mishra. Uh, Dr. Mishra, I also want to ask you, you about your experience since you have taught in very good colleges. हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ही प्रेस्टिजियस है। कैसा था आपका एक्सपीरियंस वहां पे पढ़ाने का? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? इफ ब्रीफली यू कैन शेयर विद अस। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस थे, क्योंकि वहाँ हमारे कुछ ऐसे टीचर्स थे जिनकी किताबें हमें प्रिस्क्राइब थी, तो ओके। जिन्होंने बुक लिखी उन्हीं के साथ पढ़ने का मौका मिला। हम्म। और सुधांशु शुक्ला सर हैं हिंदी में, रमा मैम है वहाँ की प्रिंसिपल हैं, मैम के साथ काम करने का मौका मिला और हम्म। बहुत अच्छा अनुभव रहा। मिथुराज सर हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया भी और उनके साथ काम करने का मौका मिला कॉलेज में। तो एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा। गेस्ट फैकल्टी के रूप में मैं वहाँ काम करता था और हम्म। टाइम टेबल के हिसाब से मुझे वहाँ जाना रहता था। अपनी क्लासेस, मेरी क्लासेस थी कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्टरी इंग्लिश, शॉर्ट स्टोरीज और पोएम्स स्टूडेंट्स को पढ़ाना। तो बहुत अच्छा अनुभव था। वहाँ के नॉन टीचिंग स्टाफ बहुत सपोर्टिव हैं सर। कैंपस हम्म। बहुत साफ सुथरा रहता है, नीट एंड हम्म। क्लीन। और हम्म। कैंटीन जो है, एक बार जो वहाँ मैगी खाता है, एंटनी जी का मैगी याद रहता है। अच्छा अनुभव रहा। वंडरफुल। अच्छा डॉक्टर मिश्रा, उसके बाद आप फिर न्यूयॉर्क में भी आप रहे और आपने वहाँ पढ़ाई किया, उसका भी एक्सपीरियंस जरा ब्रीफली हमें शेयर करें। वहाँ आपको क्या सीखने को मिला? क्या मतलब एक्सपीरियंस कैसा था आपका? नो डाउट यू लर्न मेनी थिंग्स, बट एक्सपीरियंस कैसा था एज अ कैंपस जो आपने देखा? वहाँ हमारे प्रोफेसर आते थे, प्रोफेसर जॉन वी सिंगलर, लिंग्विस्टिक्स में उनका बड़ा नाम है। तो जनरली हम लोग क्लासरूम में बैठते हैं, टीचर आते हैं, टीचर पढ़ाते हैं और हम पढ़ते हैं। वहाँ पहली बार सर हमने ऐसा रियलाइज किया कि वो जो पढ़ाएंगे वो पहले से सबके पास हैंड आउट पहुंचा हुआ था, 15-20 दिन पहले से। और ओके। उसमें बुलेट पॉइंट्स भी दिया हुआ था कि ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम डिस्कस करेंगे। और पढ़ने के बाद छात्रों को कहा गया था कि अब आप बुलेट पॉइंट्स इसमें ऐड कीजिए, आपको क्या समझ में आया, आपको क्या कठिनाई हुई। और जब सारा चीज पढ़ने के बाद 2 घंटे की एक क्लास होती थी, उसमें मिलते थे और उसके बाद फिर असाइनमेंट दिया जाता था। और असाइनमेंट की चेकिंग सर, एक एक लाइन, एक एक वर्ड, अगर एडजेक्टिव सही नहीं है तो उसके जगह पे कोई दूसरा अप्रोप्रिएट। और ये जो एक तरह से लर्निंग एंड टीचिंग असेसमेंट था, ये मेरे लिए बहुत यूनिक था, जो मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में या फिर मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में देखने को नहीं मिला। तो ये अनुभव बहुत अच्छा था। मुझे लगता है कि यहाँ भी अगर अपने छात्रों को मैं क्या यस। पढ़ाऊंगा 5 क्लास के बाद, अगर वो पहले से उन्हें बता दें, उनके बारे में डिस्कस करें, और टीचर और स्टूडेंट सबके सब डेडिकेटेड हो, फुल्ली डेडिकेटेड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स लर्नर्स हो, तो मेरे ख्याल से यहाँ भी वो रंग ला सकता है। वेरी नाइस पॉइंट यू हैव मेंशन्ड कि पहले ही आपके पास पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ने वाले हैं, आप वेल प्रिपेयर्ड होके हैं। और दूसरा बहुत वैलिड पॉइंट आपने रेज किया कि देयर हैज टू बी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड देयर हैज टू बी इनपुट फ्रॉम द स्टूडेंट्स आल्सो, कि अब आप भी उसमें कुछ ऐड करें। तो आप तभी ऐड कर पाएंगे अगर आपने वो कोर्स बहुत अच्छे तरीके से गो थ्रू किया है। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स गेट्स एंश्योर्ड थ्रू दिस प्रोसेस, जो एक बहुत वैलिड पॉइंट आपने दिया डॉक्टर मिश्रा। वंडरफुल। नाउ वी आर कमिंग बैक टू योर इंटरव्यू सिलेक्शन। डॉक्टर मिश्रा, ये आपका जो सिलेक्शन हुआ है इसमें एक इंटरव्यू था और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने वो आपका इंटरव्यू लिया था। स्टूडेंट्स को बहुत कम नॉलेज होता है इंटरव्यू की प्रोसेस के बारे में। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिटेल में थोड़ा सा बताएं कि आपका इंटरव्यू किस तरीके से गया था जब आप वहां पहुंचे, कितने पैनलिस्ट थे अंदर, तो क्या उन्होंने आपसे पूछा, किस तरीके से इंटरव्यू गया आपका, और क्या क्या चीज आपको लगता है जो आपने फोकस किया वहां पे। सो डिटेल में अगर आप बताएंगे तो सुनने वाले स्टूडेंट्स को स्पेशली फ्रॉम बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश, तो उसको बहुत बेनिफिट होगा इसमें। थैंक यू सर। सबसे पहले तो जाने से 5-6 दिन पहले आपके तकरीबन जितने वीडियो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के और लेक्चर के, हमने सारे एक एक करके देखे। और उसमें जो बातें कही गई थी वो भी इम्पोर्टेंट बातें थी। एक दिन पहले मैं वहां पहुंच गया था, क्योंकि दरभंगा से जाने में 3-4 घंटे लगते हैं और मैं चूंकि ऑलरेडी वर्किंग हूँ, तो शाम के समय में यहाँ से चले और वहाँ पास में ही एक होटल में रुके थे।
सुबह में बुलाया गया था, वहां पहुंच गए और रिसेप्शन पे बताया गया कहाँ बैठना है। वहां पे तकरीबन 70 कैंडिडेट थे, 50 के आसपास कैंडिडेट थे, 70 नहीं 50 के आसपास थे। तो हम लोगों को ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, अलग अलग ग्रुप कोड दे दिया गया, ABCD 1 2 3 4 ऐसे। और फिर सबको कहा गया कि आप लोग अब 1 घंटे के बाद हॉल में चलिए। उस हॉल में भी हम लोगों को कैटेगरी वाइज, जैसे एक ग्रुप में जो बाहर में नंबरिंग किया गया था, एक ग्रुप वाले यहाँ पे बैठे, B वाले यहाँ, C वाले यहाँ, D वाले यहाँ, और मेरा सबसे लास्ट में था, उस दिन का सबसे अंतिम ग्रुप था। उस बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहां पे एक सर रहते हैं, वो करते रहते हैं, BPSC के एम्प्लॉय रहते हैं। और एंट्री के समय जब वहां पे इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वीडियो कैमरा रहता है, उसमें चेहरा और एडमिट कार्ड पर जो फोटो है वो बायोमेट्रिक जो एग्जामिनेशन में हमने दिया था वो सब कुछ मैच किया जाता है। और इंटरव्यू तकरीबन मेरा 23 मिनट तक चला था, 22-23 मिनट तक। और उनका पहला सवाल ही यही था कि आप कहाँ पढ़ा रहे हैं, वेयर आर यू टीचिंग नाउ। तो उस समय मैंने बताया कि ऐसे ऐसी बात है, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ छात्रों को कॉलेज में। तो आप कैसे पढ़ाइएगा, यहाँ पर तो बच्चे आते हैं वो बहुत कमजोर रहते हैं, चलिए हम लोगों को पढ़ा के दिखाइए। अच्छा। हाँ, सेकंड क्वेश्चन उनका वही था, हम लोगों को पढ़ा के दिखाइए। हमने टॉपिक चूज किया कि राम गोज और आई गो। तो आई के साथ गो क्यों होता है और राम के साथ गोज क्यों होता है। मैंने कहा कि राम इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके साथ V5 लगाएंगे, SCIS करेंगे। तो ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चन दिया, कुछ वर्ड्स दिए और कहा कि पहले तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कुछ ऐसे वर्ड्स बताइए जो नाउन भी हो और वर्ब भी हो। अच्छा। तो मैंने एक वर्ड लिखा बोर्ड पे, CONDUCT, और फिर PRODUCT। फिर उन्होंने कहा कि अब इसको पढ़ के बताइए, क्योंकि मुझे आपके वीडियो से पता चल गया था कि करना उतना ही है जितना कहा गया, लिखने के लिए कहा था तो केवल लिखो। फिर उन्होंने कहा कि पढ़ के सुनाओ। फिर उन्होंने कहा कि अब ये दोनों नाउन है, नाउन के रूप में पढ़ो, फिर वर्ब के रूप में पढ़ो। फिर उन्होंने कहा, एक सेंटेंस दिया कि आई डिड नॉट गो देयर, और दूसरा सेंटेंस था आई डिड नॉट वेंट देयर। तो उन्होंने कहा कि दोनों सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस सही है और क्यों है सही। तो मैंने बताया कि अगर सेंटेंस में डू, डज या डिड लगता है तो उसके आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो इस्तेमाल करते हैं, आई डिड नॉट गो देयर। फिर PhD से रिलेटेड क्वेश्चन आया कि आपका डायस्पोरा, आपके PhD से बच्चों को क्या लाभ होने वाला है यहाँ पॉलिटेक्निक में, आपने जो रिसर्च किया है। तो उनको मैंने बताया। फिर अगला सवाल था कि आप तो इतने दिनों से हाई लेवल के इंग्लिश पढ़ा रहे थे, लिटरेचर, शेक्सपियर, मिल्टन, यहाँ तो बच्चे आते हैं क्लास 10 पास करके, उनको तो पढ़ने में भी कठिनाई होती है, आप उनको कैसे बताइए। मैंने कहा मैं भी, आई एम द सन ऑफ द सॉइल, और मैं भी बिहार इंटरमीडिएट का ही छात्र रहा हूँ, हिंदी मीडियम से पढ़ा, मुझे बखूबी पता है। और उनको फिर कुछ एग्जांपल्स दिए गए कि देखिए मैम ऐसा होता है, ऐसा होता है, मैं इनकी समस्या को समझता हूँ, मैं इन्हीं का आदमी हूँ, आई एम ऑफ देयर ग्रुप, तो इसीलिए मैं बेहतर समझ सकता हूँ और मैं समझा सकता हूँ। और फिर उसमें केवल एक जो सर थे, 6 मेंबर्स थे पूछने वाले, उसमें से एक सर थे, उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, बाकी 5 मेंबर्स वन आफ्टर अनदर कॉन्टिन्यूअस जो है वो सवाल आते रहे। और मैक्सिमम सवाल सर कभी ऐसा होता था कि जवाब देने की शुरुआत मैंने की और कुछ आंसर बोर्ड पर लिखा, उसी समय कह देते अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके फाइन। तो एंट्री, रूम में एंट्री लेने के 10 मिनट तक मैं बोर्ड पे ही था, बैठने से पहले 10 मिनट तक मैं बोर्ड पे ही था। और फिर उसके बाद बैठने के बाद इंटरेक्शन हुआ उन लोगों से, बहुत हेल्दी कंजीनियल, बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट था 10 मिनट के बाद। उससे पहले बहुत डरा हुआ सा माहौल, सन्नाटा, वो एसी की हवाएं और घरघराहट भी डरावना लग रहा था। तो
तब जाके सब कुछ ठीक ठाक रहा। और बाद में उन्होंने कहा थैंक यू, तो मैंने उनके परमिशन से व्हाइट बोर्ड को साफ कर दिया, जो कुछ भी मैंने लिखा था, जो कि सर मैंने आपके वीडियो से सीखा था। और फिर उसके बाद वहां से आ गए। तो तो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो था वो हम्म बहुत प्लेजेंट था, हम्म एनरिचिंग। सो डॉक्टर मिश्रा, आप जब एंटर किए तो उन्होंने आते ही आपको बोल दिया बोर्ड पे जाने के लिए? क्या बोले सर, एंटर किए उस आप समय? जैसे आपने एंटर किया, तो आप बता रहे हैं कि पहले 10 मिनट तक तो आप बोर्ड पे थे। डज दैट हम्म। मीन कि जैसे आप एंटर किए उन्होंने आपको बोल दिया कि आप बोर्ड पे जाइए? हाँ, सीधा सीधा बोर्ड पे ही, बैठने के लिए पूछा ही नहीं। अच्छा। पहला सवाल उनका यही था कि आप क्या करते हैं। शायद हम्म मेरे बाल कुछ यहाँ पे बीच से बाल वो नहीं है, तो उनको लगा कि उम्र दराज कैंडिडेट है, पहले पूछते हैं क्या करता है। ओके। अच्छा डॉक्टर प्रविंदर, ये बताइए आप, ये जो स्टूडेंट्स जाते हैं, अब हर बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं होता। अब जो आपने बताया कि साहब पहले 10 मिनट तो माहौल जो था वो थोड़ा डरावना टाइप था, तो ऐसे में स्टूडेंट को किस तरीके से अपने आप को, क्योंकि उसके बाद अगर वो फेज आपने निकाल दिया तो उसके बाद एज यू सेड इट बिकम्स वेरी फ्रेंडली, तो किस तरीके से वो प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए आपकी राय में? सबसे पहले सर मुझे लगता है कि मन में कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। हम्म और और शारीरिक रूप से व्यक्ति कमजोर ना हो। अगर कुछ हम्म नाश्ता वगैरह की अच्छी प्रबंध हो जाए तो बेहतर है। हाँ, गर्मी हम्म ज्यादा लगता है तो ठंडा पानी वगैरह पी ले, रिलैक्स रहे। हम्म हाँ। और हम्म आसपास में बैठे हुए कैंडिडेट से अगर कोई बात हो रही है तो कोई सीरियस बात ना करे, हंसी हम्म खुशी की हम्म बात। उसको लगे हम्म ही ना कि हम बहुत प्रेशर में हैं। क्योंकि हम्म प्रेशर तो अंदर होता ही है, लेकिन उससे पहले ही हम्म अगर उसको इनटेक करना शुरू करते हैं तो ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। हम्म 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 और हम्म हम्म रिलैक्स रहें, मानसिक रूप से ज्यादा तनाव में ना रहें। दैट हम्म दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू रिमेन रिलैक्स्ड। हम्म। अच्छा डॉक्टर मिश्रा, अब आपकी सिलेक्शन हो चुकी है और अब ये आप ज्वाइन करने वाले हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज बिहार का, तो जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती तो आप, आई एम वेरी श्योर, सोच रहे होंगे कि किस तरीके से आप वहां पे जाके अपना टीचिंग करेंगे। आपका दिमाग में क्या चल रहा है एज अ टीचर? आप वहां पे पॉलिटेक्निक में क्या करना चाहेंगे? और मैं इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बिकॉज आपका एक्सपोजर बहुत अच्छे कॉलेजेस का ऑलरेडी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का हंसराज कॉलेज और न्यूयॉर्क का जो आपने स्कॉलरशिप के थ्रू आपने वहां पे अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर किया, इन दोनों से आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने में जरूर हेल्प होगी। और अब आप वापस बैक टू योर ओन स्टेट और योर ओन प्लेस, एज यू सेड सन ऑफ सॉइल, एंड इस स्टेज में ऐसा जरूर फील होता है कि आई गिव बैक टू माई प्लेस नाउ, माई पीपल। तो क्या चल रहा है दिमाग में, क्या चल रहा है एज अ टीचर, हाउ यू वांट टू प्रोसीड? दिमाग में चल रहा है दिमाग में सर, चल रहा सारे है। बांध देंगे इंग्लिश के। अच्छा। जहां जाएंगे हम्म छात्रों को इस तरह से मोटिवेट करेंगे, सिनर्जी इफेक्ट क्रिएट करेंगे कि जो हम्म बेहतर किसी भी ग्रुप में, मुझे नहीं लगता है कि मेरा ये मानना है कि देर इज नॉट इवन अ सिंगल क्लासरूम इन विच वी डू नॉट हैव 4 5 6 10 आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स। तो यस। उन छात्रों की मदद से एक सिनर्जी इफेक्ट क्रिएट करना है कि ऑर्डिनरी छात्रों को भी लगे कि ये भी तो क्लास 10 पास करके ही आया है, ये सर के साथ बोल रहा है, बोर्ड पे लिख रहा है, आके प्रेजेंट कर रहा है, असाइनमेंट में अच्छा मार्क्स ला रहा है, क्लास टेस्ट में ठीक कर रहा है, सर इसका नाम जानते हैं, मेरा नाम क्यों नहीं जानते हैं। तो इस तरह का जब असर होने लगेगा छात्रों में, तो बस वही मोटिवेट रखना है, कांस्टेंट होमवर्क देना है, होमवर्क चेक करना है। और मुझे पूरा यकीन है कि एक बार जब स्टूडेंट सही रास्ते पर आ जाते हैं, फिर आप आलस में भी रहिएगा तो उनके एंथुजियाज्म को देख के यू गेट ड्रैग्ड इनटू द सेम काइंड ऑफ एंथुजियाज्म। वेरी ट्रू। तो पर डॉक्टर मिश्रा, ये जो आपने अपने लिए अपना विजन डिसाइड किया है, वंडरफुल है ये। और क्योंकि आपका विजन आपने डिसाइड किया है तो मेरे को इसमें एक्साइटमेंट भी आ रहा है। तो क्या मैं फ्यूचर में सोच सकता हूँ एक अगेन इंटरेक्शन आपके साथ और आपके स्टूडेंट्स के साथ, जिनको आप ग्रूम करें, मेंटर करें, और मैं उनके साथ इंटरेक्ट कर पाऊं और हम सारे लोगों को दिखा पाएं कि डॉक्टर मिश्रा ने इन स्टूडेंट्स को किस काबिल बनाया है? मे बी बिकॉज अगर इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दिख जाता है, कम्युनिकेशन में दिख जाता है, पर्सनैलिटी में दिख जाता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में आप अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करें हमारे साथ, और हम उसको स्टूडेंट्स को सारे सबको दिखाएं कि दिस इज हाउ थिंग्स चेंज व्हेन अ गुड पर्सन, गुड टीचर, व्हाट चेंजेस अ गुड टीचर कैन ब्रिंग इन स्टूडेंट्स? कैन वी एक्सपेक्ट दैट? निश्चित रूप से सर, क्योंकि मैं जिनसे बातचीत करूंगा, मैं जिनके साथ समय बिताऊंगा छात्रों के साथ, वो यूजुअली फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर के छात्र होंगे। हम्म और
वो कॉलेज छोड़ेंगे 3 साल के बाद। तो जाते हुए आज से 3 साल के बाद, अभी 2023 से 2026 में 27 में अगर कभी संभव होगा तो निश्चित रूप से उस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट किया जा सकता है। चलो, दैट इज वंडरफुल। डॉक्टर मिश्रा, एनी मैसेज यू हैव फॉर दोस्त हु आर गोइंग फॉर इंटरव्यू? अभी इंटरव्यू चल रहे यस हैं सर। बिहार पॉलिटेक्निक में, तो कोई मैसेज आपका उन स्टूडेंट्स के लिए, दोज हु आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू नाउ? इंटरव्यू से पहले अपना पसंदीदा भोजन खाएं, खूब खाएं, भर मन सोएं, नींद में कमी नहीं होनी चाहिए। और यात्रा के दौरान अगर आप ड्राइव नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जो कुछ वीडियो वगैरह हो सकता है वो आप देखें, क्योंकि जितनी भी वीडियोस हैं यूरोपीडिया पर, सब में कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक है जो आपको दूसरे जगह नहीं मिलेगा, यहीं पे मिलेगा। एकदम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, बहुत ही इनोवेटिव सोच के साथ बनाया गया है। और रिलैक्स रहें, इंटरव्यू बेहतर जाने के लिए मन की शांति जरूरी है, वही सफलता की कुंजी है। चलिए, थैंक्स अलॉट डॉक्टर मिश्रा, आपने अपना टाइम मेरे को दिया, और आई मस्ट से इट वाज अ वेरी प्रोडक्टिव मॉर्निंग फॉर मी. This is my first interaction with you today, and I am going to start my day on this positivity and this energy which has come from your side. And I must thank you for that. And I wish you do really wonderful in your profession. एक टीचर कंट्री बनाता है, so that is, I mean, your टीचर का जो प्रोडक्ट है, that is reflected in the nation. And I'm very sure very good things are gonna get reflected from you as your teacher, and you're gonna mentor many students, thousands of students. So I wish you all the very best for that, and thanks for your time, Dr. Mishra. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच इंडीड।